everyone. This is Poonam Das, your EVS teacher. How are you all, children? I hope you all are fine and good and enjoying your online classes with great fun. Children, we have completed our first two chapters and now today we are going to start the third chapter of NCERT class 5th EVS, that is from tasting to digesting. So let's begin. This chapter starts with Jhumpa, Jhulan and their mother. When mother served dinner to both of them, Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I'm not going to eat this bitter karela or bitter gourd." So this is bitter gourd. So I'm not going to eat it. जब झुम्पा और झूलन की माँ ने दोनों को डिनर सर्व किया तो झुम्पा जो है किचन की ओर दौड़ती हुई भागी और अपने माँ को पकड़ के कहती है कि माँ, मैं ये जो करेले हैं, जो कड़वे करेले हैं, इनको मैं नहीं खाऊंगी. गिव मी गुड़, दैट इज जैगरी, एंड रोटी. तो वो कहती है कि माँ मुझे जैगरी दो, गुड़ दो, और गुड़ जो है किसके साथ दो? रोटी के साथ दो. मुझे करेले नहीं खाने हैं. माँ स्माइल्ड एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. माँ कहती है कि तुमने तो सुबह भी जो है रोटी शुगर के साथ खाया था और अभी भी तुम्हें जैगरी चाहिए रोटी के साथ. झूलन टीज्ड झुम्पा. झूलन जो है झुम्पा की सिस्टर है और वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. क्या तुम बोर नहीं होती एक ही तरह का टेस्ट खा खा के? झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली, दैट इज टैमरिन. तो झुम्पा अपने बहन की बात सुनते ही जल्दी से जवाब देती है, क्या तुम कभी बोर होती हो इमली को लीक करते हुए? हमेशा इमली को तुम चाट के खाती रहती हो, क्या कभी बोर होती हो? क्या तुम इमली always you leak imli and you don't get bored? I bet your mouth is watering just by hearing the word imli. और मैं अभी कह सकती हूँ कि जिस वर्ड सुन के ही इमली की तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा. Sure, I love the sour imli. झूलन कहती है कि हाँ जरूर, मुझे इमली बहुत पसंद है. But I eat sweet and salty things too. पर मैं स्वीट और सॉल्टी थिंग्स भी खाती हूँ. I even eat करेला, said झूलन and looked at her mother. तो वो कहती है कि मैं सिर्फ इमली ही नहीं, हाँ मुझे इमली पसंद है, लेकिन मैं इमली के अलावा स्वीट सॉल्टी सारी चीजें खाती हूँ, और इवन कि मैं जो है जो कड़वा करेला है, जो बिटर करेला है, उसको भी खाती हूँ. और वो कहते हुए अपनी माँ को देखती है और फिर दोनों ही बहुत तेज से हंसते हैं. So, and they had a long discussion. So after that, they decided to play a food testing game. Here you can see they are playing a game. Which game? Food testing game. So Jhulan said to Jhumpa that she will put some food items in Jhumpa's mouth and Jhumpa have to guess the food items with closed eyes. तो झुम्पा को क्या करना है? झूलन जो है अपने झुम्पा के मुंह में जो है कुछ खाने के पीसेस देगी या कुछ भी टेस्ट करने के लिए कुछ उसको फूड दिया जाएगा उसके माउथ में, और झुम्पा को क्या करना है? उस फूड को टेस्ट करके बताना है कि वो कौन सा है, उसका नाम बताना है, और जो उसकी आंखें जो है तब बंद रहेंगी. तो लेट्स प्ले अ गेम. You close your eyes and open your mouth. So here Jhumpa is opening her mouth. I will put something to eat in your mouth. You have to tell what it is. So Jhulan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. So Jhulan ने क्या किया? First Jhulan put some lemon juice or few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. So it was what? It was lemon juice and it tastes sour. Jhumpa guessed it correctly and very quickly.
Next, Jhulan then picked up a small piece of jaggery. Her mother just suggested crushed it. Otherwise she will know what it is. तो झूलन ने फिर नेक्स्ट क्या पीस उठाया, जैगरी का गुड़ का पीस उठाया. फिर उसकी माँ ने बोला कि चलो इसको क्रश कर दो, नहीं तो उसको मुंह में देते ही उसे समझ आ जाएगा कि क्या है. Jhulan crushed the jaggery, but Jhumpa easily guessed it. So this is the crushed jaggery, and Jhumpa can easily guessed that it is a sweet taste. Jhumpa could tell the fried fish even before tasting it. So next they come up with a fish fry, and Jhumpa could tell that this is a fish fry very easily without tasting it. How she can tell it? Because of its strong smell. Fried fish has a very strong smell, and not only we taste food, after eating the food we'll taste the food, but we can know it by smell also. So just not only taste our food, we can know it by the smell of the food. So here, before eating the fish fry, she can tell that this is a fish. By how she can tell it? How she told it? She told it by its strong smell. Jhumpa was confused. It was so next Jhulan said, now close your nose. So next Jhulan ने कहा कि अब आपको क्या करना है, अब आप जो है अपने नोज को भी क्लोज करो. आईज तो आपने क्लोज कर ही रखा है, अब आप अपने को आपको क्या करना है, आप अपने नोज को भी क्लोज करो. So next Jhulan said, Jhumpa was confused. It was a bit bitter. नेक्स्ट जो झूलन है उसके मुंह पे जो भी फूड आइटम दिया, तो झुम्पा जो है उससे कंफ्यूज हो गई, क्योंकि फूड जो था थोड़ा सा बिटर था, लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सॉर. तो जो फूड आइटम था वो थोड़ा बिटर भी था, सॉल्टी भी था और सॉर भी था. तो झूलन को समझ नहीं आया कि ये है क्या. गिव मी वन मोर स्पूनफुल. झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, uncovered Jhumpa's eyes and said, laughed, yes, give me more. So क्या हो रहा है कि झुम्पा को जो फूड अभी दिया गया है उसको वो बोल नहीं पा रही है, और ये एक गेम है तो इसीलिए वो क्या है, वो बोल रही है हाँ एक और चम्मच दो, एक और चम्मच दो. और जो फूड आइटम जो उसको दिया गया उसका टेस्ट कुछ बिटर था, फिर सॉल्टी भी था, सोर भी था. कैसे? उस फूड आइटम क्या था, करेले की सब्जी जो उसकी मदर ने डिनर के लिए बनाया था, जो वो खाने से मना कर रही थी. और ये जो करेला जो है आप सबको पता है बिटर टेस्ट होता है, इसमें मसाले और सॉल्ट वगैरह है, उसमें मसाले के कारण सॉर और सॉल्टी टेस्ट भी आ रहा है. तो झुम्पा जो है आंखें बंद है और वो एक एक स्पून करके जो है खाए जा रही है. गिव मी सम मोर सो दैट शी कैन गेस व्हाट इट इज, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे टेस्ट है. सो इस तरह झुम्पा जो है करेले की सब्जी भी खा लेती है. So now we'll discuss and write some questions. What it is? Let's read. Jhulan's mouth started watering when she heard the word Imli. So, when does your mouth water? When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. झूलन को जब उसकी सिस्टर झुम्पा ने कहा इमली के बारे में तो उसके मुंह में पानी आने लगा. तो ऐसे ही हम सबको भी कुछ ऐसी कोई फूड आइटम्स का नाम सोचते ही या उसके बारे में सोचते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है. तो यूजुअली चिल्ड्रन लाइक यू लव टू ईट चिप्स, आइसक्रीम, chocolates, right? So when you see the following things, your mouth start watering. What it is? The things, your favorite food, your mouth start watering. What are the things? Things are samosa, pickles, jalebi, chocolate, ice creams. And how it tastes? Samosa tastes salty and spicy, pickles sour, jalebi sweet, chocolate sweet, ice cream sweet. So these are the things when we think about it, our mouth waters.
Next, do you like only one kind of taste or different ones? Why? क्या आप सिर्फ एक ही तरह का टेस्ट पसंद करते हो या बहुत सारे अलग अलग टेस्ट करते हो और क्यों? I like different kind of taste. Only one taste can be boring. Obviously, अगर एक ही तरह का टेस्ट हम टेस्ट करते रहेंगे, खाते रहेंगे उस एक ही टेस्ट का फूड, तो हम बोर हो जाएंगे. तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट चाहिए होता है. Next, Julan put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? सो झूलन ने जब थोड़ी 2-4 ड्रॉप ही उसके मुंह में लेमन जूस का ड्रॉप उसके मुंह में दिया था और झुम्पा जो है बहुत ही इजीली गेस कर चुकी थी कि ये लेमन जूस है, इसका टेस्ट सॉर है. तो क्या आपको लगता है क्या इजीली हम कुछ ही फ्यू ड्रॉप से बता सकते हैं वो किस चीज का टेस्ट है? सो यस, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोर थिंग्स आर इनफ टू मेक आउट द टेस्ट. बहुत ही थोड़े ही दो ड्रॉप्स या थोड़ी ही मात्रा में अगर हम कोई भी सॉर थिंग्स को टेस्ट करेंगे तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज जो है खट्टी है. नेक्स्ट, इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सोप एनी सीड ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आईज क्लोज्ड हाउ? अगर कोई जो है आपके मुंह में, आपकी आईज क्लोज्ड है और आपके मुंह में कुछ सौंफ के दाने दैट इज फेनल सीड्स जो है डाल रखते हैं या बंद कर आपके मुंह में देते हैं, तो आप कैसे बता सकते हो और क्या बता सकते हो और कैसे बता सकते हो? सो यस, यू कैन रिकॉग्नाइज समथिंग बाय टेस्ट एंड स्मेल ऑल्सो. फेनल सीड का स्मेल से भी आप बता सकते हो और जब आपके मुंह में गया तो आप उसके टेस्ट से भी बता सकते हो कि इट इज अ फेनल सीड. और जो भी फूड आइटम आपने आपके सामने है जिसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है या आप उसको टेस्ट करके आप बता ही सकते हो कि वो कौन सा फूड है. Next, there are some more questions. How did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the name of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? तो झुम्पा ने जैसे गेम खेला और उसको अलग अलग फूड उसको टेस्ट भी कराए गए, कुछ उसने सिर्फ स्मेल से ही बता दिया. ऐसे ही झुम्पा ने जैसे फ्राइड फिश को स्मेल से बता दिया. क्या आप भी कोई ऐसी फूड आइटम है जिसको आप बिना देखे बिना टेस्ट किए आप उसको नाम बता सकते हो और वो सारी चीजें क्या है? तो यहाँ हम आंसर देखते हैं. झुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल. यस, you can also guess many or I can also guess many things only by their smell. For example, I can guess fish, omelette, samosa, pakode, etc. by their smell. So these are the things or these are the food items we can tell by their smell also. Next, has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? तो क्या किसी ने आपको कभी बोला है कि नाक को बंद कर लो मेडिसिन जब आप लेते हो? तो मेडिसिन यू ऑल नो दैट इट टेस्ट बेटर, तो आपको डॉक्टर या आपकी मदर बोलते हैं ना नाक को बंद कर लो और फिर मेडिसिन को लो. तो ऐसा क्यों कहते हैं, आपने कभी सोचा है? सो सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ अ फूड. जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल है और हमारा टेस्ट है, ये दोनों ही हमें हेल्प करता है फूड के टेस्ट को पूरी तरह समझने में, उस टेस्ट को कंप्लीटली लेने में. इन केस ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग द नोज विल समवॉट मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिसिन. दिस मे बी द रीजन व्हाई वी आर told to close our nose while taking a medicine. तो जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो हमारे को बोला जाता है कि नाक को बंद कर लो, क्योंकि जो मेडिसिन का टेस्ट है वो जो टेस्ट दैट इज बिटर वो स्मेल से भी हम फील कर लेते हैं. तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप नोज क्लोज करके लो तो आप थोड़ा सा उसका जो टेस्ट है, बिटरनेस जो है उसको आप मतलब आपको फील नहीं होगा और आप इजीली मेडिसिन ले पाओगे. इसीलिए आपको मदर या डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि क्लोज योर नोज एंड देन हैव द मेडिसिन. So now here there are some more things. Close your eyes and tell. So आपको जैसे कि पता चला है कि हम लोग जो है टेस्ट किससे करते हैं? टंग से. Now we all know that our tongue help us in tasting different tastes. But there are some places in our tongue where we can recognize a particular taste more than the other taste.
तो हमको सबको पता है कि टेस्ट जो है हम टंग से करते हैं, लेकिन टंग में भी कुछ पर्टिकुलर प्लेस है या पोर्शन है जहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर टेस्ट को ही अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं एज कम्पेयर टू कोई अदर टेस्ट। मतलब किसी एक प्लेस पे आपको स्वीट या सोर ही टेस्ट फील होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द टिप ऑफ आवर टंग कैन रिकॉग्नाइज द sweet taste. So here we can recognize sweet taste. Upper side portion of our tongue can recognize salty taste, and above it we can recognize sour taste. Near the throat area we can recognize the bitter taste. That is why we get the bitter taste only during swallowing the bitter medicine. जैसे कि आपको पता है जब आप मेडिसिन लेते हो तो तभी आपको गले में थोड़ा सा कड़वा या बिटरनेस फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारे थ्रोट एरिया के पास ही हमारा जो बिटर टेस्ट है या बिटर टेस्ट रिकॉग्नाइज करने का एरिया है। सो यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ टेस्ट रिसेप्टर। Here you can recognize sweet taste. Here upper side portion salty, above upper side portion sour, and the throat area bitter. So next, one at a time, put something to eat in other part of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? There is one question. उन्होंने पूछा कि क्या आप जब फूड को अगर किसी और पार्ट में रखते हो, लिप के नीचे या माउथ के ऊपर के पोर्शन में या टंग के नीचे, क्या आप वहां टेस्ट कर पाते हो? सो द आंसर इज नो, वी डू नॉट गेट एनी टेस्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ बिकॉज वी कैन टेस्ट ओनली इन द टंग। सो टंग से ही हम जो है टेस्ट कर पाते हैं, ना कि हम किसी अदर पार्ट में। सो हेयर यू ऑल नो दैट मैप ऑफ टेस्ट रिसेप्टर, कहाँ कौन सा टेस्ट हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है और इसकी लेबलिंग भी हो चुकी है टंग की, इसको आपको ड्रॉ करना है। तो टिप ऑफ द फ्रंट पार्ट जो है यहाँ पे स्वीट टेस्ट होता है। ये देखो आप कलर से अच्छे से लेबल किया गया है। डायग्राम आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है ये सॉल्टी है। हाँ, आप सॉर टेस्ट करते हो, जो भी जैसे कि लेमन या जो आपका अनराइप मैंगो होता है, जब आप खाते हो तो आपको यहाँ फील होता है, यहाँ सेंसेशन आते हैं। और जो मेडिसिन वगैरह लेते हो तो ये थ्रोट एरिया में बिल्कुल एंड में यहाँ बिटर टेस्ट आता है। सो 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट आप सबको पता चला। फर्स्ट इज बिटर, सोर, सॉल्टी एंड स्वीट। सो ड्रॉ इट इन योर नोटबुक ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट, so this is the home assignment. Given below are pictures of some food items. Write the kind of taste of each of them has in the blanks. तो यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपने सबने पढ़ा टेस्ट के बारे में और कितने टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। तो हर एक फूड का अपना एक टेस्ट होता है। यहाँ उनके पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा टेस्ट आपको, अगर आप इस फूड को आइटम को खाओगे तो आपको कौन सा टेस्ट आएगा, what kind of taste you can get from these food. So this and this 2 page, do it in your notebook. Okay children, so this is the end of this part 1. We have finished the part 1. In this part we have learned about tasting. इस part में हमने tasting के बारे में पढ़ा। In next part we will know about digesting. Next part में हम digesting के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर था चखने से लेके पचाने तक, from tasting to digesting. So children, thank you all. Stay home, stay safe.